Students, welcome to all in your geography class. Dear students, again we are going to continue our same chapter number 5. Okay students, so let me tell you that in this video we will discuss our next topic, that is classification of minerals. Okay students, I'm repeating, in this video we are going to discuss our topic, classification of minerals. So let me explain. And students, you will feel very familiar with these lines or explanation, because this chapter was also included in class 10th geography. Okay students, I think you all are aware about metallic minerals. Just listen it. These metallic minerals contain metal content, okay, and can be subdivided into these three categories. Metallic minerals contain metal content, that's why these are known as metallic minerals. And along with that, non-metallic minerals are also here. Non-metallic minerals do not contain metal content. Okay, the definitions of both of the categories are very easy. Metallic minerals contain metal content, and in this category there will be no metallic content. Okay, so metallic minerals are classified in these three types. Number 1, precious metals. Precious metals like gold, silver, platinum, okay, all these are included in precious metals, and precious metals are included in metallic minerals. Number 2, ferrous metals. In this category, iron and other metals often mixed with iron to form various kinds of steel. Like iron is also included in this category, manganese also, and cobalt also. Number 3, non-ferrous metals. In this category include metals like copper, lead, zinc, tin, aluminium. So all these minerals like copper, lead, zinc, tin, aluminium are included in non-ferrous metals. So students, all these are metallic minerals, okay, because these minerals contain metal content, and we can divide our metallic minerals in these three categories. Now, non-metallic minerals. As I have told you that non-metallic minerals do not contain metal content. Okay. Examples are sulfur, phosphates, nitrates. These are examples of non-metallic minerals. Cement is a mixture of non-metallic minerals. Okay student. So this was the classification of minerals. Okay. Now we are going to study about rocks. Okay. And along with the explanation of rocks, we will also study about classification of rocks. So see, the earth's crust is composed of rocks. We all know about it. A rocks. But what is a rock? A rock is an aggregate of one or more minerals. Okay students, it means a rock is a combination of one or more minerals. यानी कि कोई भी जो रॉक होती है वो एक मिनरल या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा मिनरल से मिलके बनी होती है. रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स. ये बहुत सिंपल लाइंस हैं, तो आई थिंक मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है. रॉक हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, एंड डिफरेंट कलर्स में हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट इज़ हार्ड, ओके, सॉफ्ट स्टोन इज़ सॉफ्ट. ग्रेनाइट हार्ड होता है, सॉफ्ट स्टोन हमारा सॉफ्ट होता है. गैब्रो इज़ ब्लैक एंड क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की वाइट. क्वार्ट्ज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था स्टूडेंट्स. गैब्रो का कलर ब्लैक होता है, ओके, एंड क्वार्ट्जाइट जो होता है मिल्की वाइट कलर का होता है. रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स. ओके, यानी कि रॉक्स में जो मिनरल्स हमारे पाए जाते हैं उसमें हमारा फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज, ये बहुत कॉमन मिनरल्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस डेफिनेशन, पेट्रोलॉजी. ओके students, you have to be aware about each or every line, because in 1 mark question any explanation can come there. like ये क्वेश्चन भी अपना आ सकता है, व्हाट इज पेट्रोलॉजी. तो एक एक लाइन को बहुत ध्यान से आप अटेंड करेंगे. पेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ रॉक्स. क्या होता है बेटा पेट्रोलॉजी? जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, रॉक्स की जो फॉर्मेशन, इंटीरियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं, उनको स्टडी करने की जो साइंस होती है, दैट इज़ पेट्रोलॉजी. इट मीन्स पेट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स. And a petrologist is a person who studies rocks in all their aspects. So सिंपल सी बात है, पेट्रोलॉजिस्ट कौन होता है? पेट्रोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो रॉक्स को उनके सभी एस्पेक्ट्स में स्टडी करता है. ओके स्टूडेंट्स,
लाइक क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर क्या है रॉक का, मिनरल कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ है, अकरेंस क्या है, अल्ट्रेशन क्या है, एंड रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स। ओके, और एक पर्टिकुलर रॉक का दूसरी रॉक के साथ में क्या रिलेशनशिप है, इन सभी एस्पेक्ट्स को एक पेट्रोलॉजिस्ट ध्यान में रखता है जब वो अपना वर्क करता है। एंड पेट्रोलॉजिस्ट क्या करता है, पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स, एंड पेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ रॉक्स। As there is a close relation between rocks and landforms, okay, we all know that there is a close relationship between rocks and landforms, rocks and soils. A geographer requires basic knowledge of rocks. Okay, so एक geographer के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको rocks की basic knowledge होनी चाहिए. There are many different kinds of rocks. Okay, students, now we are going to study the classification of rocks. So there are many different kinds of rocks which are grouped under 3 families on the basis of their mode of formation. ओके बेटा, तो हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है और ये किसके बिहाफ पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन यानी कि इनका जो मेकिंग प्रोसेस होता है, ये बनती कैसे हैं। सो उस बिहाफ पे हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज देते हैं, लाइक नंबर 1 आइजीनियस रॉक्स, ओके, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक्स, and number 3 metamorphic rocks. So further I am going to explain you about these different types of rocks. So number 1 are igneous rocks. Basically I am telling you that these rocks are solidified. Solid word आपने सुना है, उसी से बना है solidified. These rocks solidified from magma and lava. यानी कि अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं बताती हूँ अभी आपको। आइजीनियस रॉक्स किससे बनती हैं बेटा, जो हमारे अर्थ के बहुत इंटरनल पार्ट में जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है। ओके स्टूडेंट्स, जब वो हम बहुत स्पीडीली हाई टेम्परेचर उसका होता है और बहुत स्पीड और प्रेशर के साथ जब वो हमारे अर्थ क्रस्ट को ब्रेक डाउन करता है और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद जब वो हमारे सरफेस पे एंटर होता है और जब वो जिस मोमेंट पे वो एंटर होता है, एट दैट टाइम द मैग्मा इज़ वेरी हाईली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लाइक फायर, बट स्लोली मैग्मा स्टार्टेड टू कूल डाउन, लेकिन धीरे धीरे में वो मैग्मा कूल होता है और उसकी कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड जब वो कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाता है तो उसके बाद वो मैग्मा सॉलिड फॉर्म में आना शुरू होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो उस मैग्मा के सॉलिड होने से ये हमारी जो रॉक्स बनती हैं उसको हम कहते हैं आइजीनियस रॉक्स। Okay, it means these rocks are made up with the solidification from magma and lava. So just attend. Okay, now students, number 1 igneous rocks. As igneous rocks form out of magma and lava from the interior of the earth, they are known as primary rocks. The igneous rocks, ignis in Latin means fire. ओके, ये जो बेटा हमारा वर्ड है आइजीनियस रॉक्स जो है वो एक लेटिन वर्ड से मिलके बना है, लेटिन वर्ड इजनिस है और इसका मीनिंग होता है बेटा फायर। आर फॉर्म्ड, ये हमारी आइजीनियस रॉक्स कब बनती हैं, ये इस तरह से बनती हैं व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। अभी मैंने आपको बताया कि जब मैग्मा हम अपने इंटरनल जो हमारा अर्थ है वहाँ पे उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन में वो हमारी क्रस्ट पे आता है, अर्थ की जो हमारी टॉप लेयर है क्रस्ट उस पे आता है और फिर उसको जिस टाइम आता है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है बट धीरे धीरे कूल होना शुरू होता है। कूल होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और वो सॉलिड फॉर्म जो हमारे सरफेस होते हैं उससे बनती हैं बेटा हमारी आइजीनियस रॉक्स। यू ऑलरेडी नो वट मैग्मा इज़। मैग्मा क्या है ये आप सभी 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड आइजीनियस रॉक्स। वही चीज़ें मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जब मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट अपने ऊपर की तरफ आता है, क्रस्ट की तरफ, कूल ठंडा भी हो जाता है, एंड टर्न्स इनटू सॉलिड फॉर्म, कूल होने के बाद सॉलिड फॉर्म में टर्न होता है, इट इज़ कॉल्ड आइजीनियस रॉक्स। इसे हम कहते हैं आइजीनियस रॉक। आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, सभी बहुत ध्यान से अटेंड करेंगे कि मैग्मा के कूल होने की, लावा के कूल होने की जो प्रोसेस होती है ना, एंड सॉलिडिफिकेशन, और उसके सॉलिड होने की जो प्रोसेस होती है बेटा, दिस कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट
और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कई बार क्या होता है कि हमारी अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसके कई बार उसके अंदर भी ये कूल हो सकता है और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और कई बार क्या होता है कि हमारी अर्थ का जो सरफेस जो टॉप लेयर होता है जो जिस पे हम रहते हैं अपनी सभी एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पे भी कूल हो सकता है ये। सो ये प्रोसेस इसके कूलिंग डाउन होने की प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट हो गई है 2 एस्पेक्ट्स में। अभी इस पैराग्राफ में हम थोड़ा और बेटर वे में जान पाएंगे। अब एक बार आप ये लाइन नंबर 1 देखिए। एज आइजीनियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा, जैसा कि हमें पता है कि ये जो रॉक्स है मैग्मा से बनती हैं, एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। सो इन वाली रॉक्स को बेटा हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इट मीन्स वट इज अनदर नेम ऑफ आइजीनियस रॉक्स, दीज रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। लर्न कर लीजिएगा इस चीज़ को आप। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। आइजीनियस रॉक्स आर क्लासिफाइड। अब देखिए बेटा आइजीनियस रॉक्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और उसका बेस क्या होता है। कोई भी टॉपिक हमारा होगा उसका आगे हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं, तो अभी हम आइजीनियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। दीज रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। बेटा इन रॉक्स को हम किस चीज़ के बिहाफ पे क्लासीफाई करते हैं, उसके टेक्सचर के बिहाफ पे। टेक्सचर अब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स। टेक्सचर उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बेटा अपॉन साइज, उसमें ग्रेन्स का साइज़ क्या है। बेटा कोई भी रॉक है वो ग्रेन्स से मिलके बनी है और उसमें ग्रेन्स का साइज़ क्या है, एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, और ग्रेन्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का है, और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल। आप इसको इतना ही मान के चलो। टेक्सचर डिपेंड्स कि हमने कहा कि हम आइजीनियस रॉक्स को टेक्सचर के बेस पे डिपेंड करते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है? टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स। भी कोई भी रॉक है उसके अंदर हमारे ग्रेन्स होंगे। अब ग्रेन्स का साइज डिफरेंट होगा, तो उसमें ग्रेन्स का साइज क्या है और ग्रेन्स की अरेंजमेंट किस तरह से हुई है, ये चीज़ उस रॉक का टेक्सचर बनाती है और उसके टेक्सचर पे बिहाफ पे हम आइजीनियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। सो जस्ट सी द कंडीशन। इफ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ्स। देखो बेटा हमने बेसिकली बात की कि आइजीनियस रॉक्स मैग्मा के कूल होने से बनती हैं। अब देखिए इफ मोल्टन मटेरियल कि हमारा जो मोल्टन मटेरियल होता है इज कूल्ड, वो कूल डाउन होता है स्लोली एट ग्रेट डेप्थ्स, यानी कि वो हमारी अर्थ के इंटरनल पोर्शन में ही वो कई बार कूल डाउन हो जाता है। हमारे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारे सरफेस अर्थ का जो सरफेस होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो जब ये ग्रेट डेप्थ में अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, मिनरल ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज, तो उस रॉक के अंदर जो मिनरल जो ग्रेन्स होंगे बेटा वो बहुत लार्ज होंगे। ओके, और इन ग्रेन्स का लार्ज होना या स्मॉल होना ये उस रॉक का टेक्सचर बना रहा है। ध्यान देना, आप इसको थोड़ा पेशेंस लेके समझने की कोशिश करेंगे। तो एक कंडीशन हमारी ये हुई कि इफ़ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ्स, कि यदि वो अंदर ही ग्रेट डेप्थ में ही कूल डाउन हो जाता है तो मिनरल ग्रेन्स का साइज़ क्या होगा बेटा? दैट विल बी वेरी लार्ज। तो मिनरल ग्रेन्स का साइज लार्ज होगा। ओके, सो दिस इज कंडीशन नंबर 1। नाउ दिस इज कंडीशन नंबर 2। एक और कंडीशन ये होती है सडन कूलिंग एट द सरफेस। कई बार क्या होता है कि जो हमारा मैग्मा होता है वो सडन कूलिंग, बहुत अचानक से कूल होता है एट द सरफेस, मतलब सरफेस पे आके, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, रिजल्ट्स इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? हमें क्या मिलेगा? स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। ऊपर वाली कंडीशन में हमें क्या मिल रहा था? ऊपर वाली कंडीशन में हमें मिल रहे थे लार्ज ग्रेन्स। कब मिल रहे हैं? जब हमारा मोल्टन मटेरियल अंदर ग्रेट डेप्थ पे ही कूल डाउन हो रहा है। और ये स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स हमें कब मिल रहे हैं? जब हमारा मैग्मा जो है सडन कूलिंग एट द सरफेस पे आके कूल डाउन होता है, तब हमें मिलते हैं बेटा स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। ओके, दिस वॉज द कंडीशन नंबर 2। अभी हम देखेंगे बेटा थर्ड को। इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइजेस ऑफ ग्रेन्स मेकिंग अप आइजीनियस रॉक्स। ओके बेटा, हमने देखो बेटा इसमें हमने बात की कि जो हमारा मैग्मा है वो बहुत ग्रेट डेप्थ पे कूल हो रहा है। नंबर 2 हमने बात की कि मैग्मा कहाँ आके कूल होता है? एट द सरफेस। एंड नंबर 3 हम कह रहे हैं बेटा इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ कि बेटा मिक्सचर, यानी कि जो हमारा बहुत हाई फायर के जैसा फायर वाले टेम्परेचर का जो मैग्मा होता है, जैसे वो बहुत इंटरनल पोर्शन से हमारे ऑन द अर्थ के सरफेस पे आता है,
तो ऊपर आते आते भी उसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज होता जाता है, और कुछ क्या होता है, और फिर जैसे ही वो सरफेस पे आता है सो बिल्कुल ओपन हो जाता है, तो कुछ टेम्परेचर फिर वहाँ पे उसका टेम्परेचर कंप्लीटली डाउन जाता है। तो ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग, यानी कि कुछ वो अंदर ही कूल हुआ, आते आते कूल डाउन हो गई क्योंकि एनर्जी तो डिक्रीज होती है, और कुछ वो सरफेस पे आता है तब कूल हो जाता है। तो ये इंटरमीडिएट हो गया बेटा। इस कंडीशन से जब मैग्मा हमारा कूल डाउन होता है, सो दिस रिजल्ट्स इन इंटरमीडिएट साइजेस ऑफ ग्रेन्स। तो इस तरह की प्रोसेस में ग्रेन्स का साइज जो होता है बेटा इंटरमीडिएट होता है। ओके बेटा, यानी कि मिक्सचर, यानी कि ऊपर वाली कंडीशन में हमें मिले वेरी लार्ज ग्रेन्स, इसमें हमें मिले बेटा स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स, और नंबर 3 वाली में क्या हो गए, लाइक दैट मीडियम साइज ऑफ ग्रेन्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। टॉपिक क्या चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइजीनियस रॉक्स। ओके बेटा, अब हम देखेंगे ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेकिया एंड टफ। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ आइजीनियस रॉक्स। ये क्या है बेटा, आइजीनियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, so students, in this video I think this much is enough for you. Okay, so let me revise what we have discussed in this video. In the very beginning we have discussed about classification of minerals. Okay, basically there are two main categories, metallic minerals and non-metallic minerals. We have discussed about both of the categories. After that we have discussed about what is a rock and what is petrology and who is a petrologist. After that we have discussed about classification of rocks. Basically we have three types: igneous rocks, sedimentary rocks, and number 3 is metamorphic rocks. So with large details I have explained igneous rocks. Okay students, so just read this page very carefully and try to prepare your own notes. Okay students, in my next video I will explain sedimentary rocks, and third one metamorphic rocks. Okay, thank you students and have a good day.